Priyanka ma'am, please make me host. One second. Thank you, ma'am. Thank you. Good afternoon, Priyanka madam. Good afternoon, Good Survi madam. afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Hope you are fine, sir. Welcome, sir. Fine, welcome. Thank you so much. सुबह ऐसा सेशन लास्ट का बड़ा टफ हो जाता है करना. तो सुरभि को देख के थोड़ी एनर्जी ले रहा हूँ, फिर थोड़ी एनर्जी आपको देख के ले रहा हूँ, थोड़ा सा एनर्जी आ जाएगी थोड़ी देर में. No, sir. You are the source of energy and inspiration for us. नहीं Yes, भैया, sir. नहीं Yes. भैया, अब हम बीते हुए अब हम फूके हुए चावल हो गए. No, sir. Sir, old is gold, always. नहीं प्रियंका मैडम, आज की जनरेशन से पूछोगे तो बोल देंगे ओल्ड इज अ लायबिलिटी. No, sir. बूढ़े लोगों को हटाओ, यंग और यंग माइंड्स को लेके आओ. सर, आपको किसने कहा भी आप बूढ़े हो? अरे पूरे बाल सफेद हो गए, अभी दिखाता हूँ फोटो. मैंने सुरभि को तो बोल ही दिया है कि बिल्कुल भी हंसना मत, प्रेजेंटेशन के बाद जो भी है वो सामने रहेगा. एंड आप दोनों से रिक्वेस्ट है, अपने क्रिटिकल कमेंट्स दीजिएगा सो दैट आई कैन इम्प्रूव इन फ्यूचर प्रेजेंटेशंस, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. सर, we know आपका प्रेजेंटेशन अल्टीमेट ही रहेगा. नहीं. पर अभी sir, always अभी are also अभी looking. थोड़ी सी तबीयत नासाज है तो मुश्किल है, बट आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट. Yes, sir, no problem. और ये टॉपिक थोड़ा हटके है, इसमें साइकोलॉजिकल वालों का रोल बहुत ज्यादा है. जैसे पूजा मैम का सेशन बहुत अल्टीमेट रहा होगा, और आई मिस द सेशन बिकॉज आई ऑलवेज लाइक हर सेशन, बट एनीवे. Yes, sir. Sir, she belongs to that field only. Means, ma'am she's deals really with the- she's the real expert Ma'am, actually. Ma'am deals with the emotional intelligence. She is PhD in that subject only. So, might be for her. True ma'am, true. So, sir, with your kind permission, sir, shall we start the session now? No problem, it's up to you. Okay, sir. Good afternoon to today's guest, Dr. Neeraj Upmanyu, sir. Once again, welcome you to the day 2 of online Atal sponsored FDP program. So before moving forward, I would like to take the opportunity to introduce our today's speaker before our audience. So it's always a matter of proud, sir, for me to introduce you as your student. Also, I was one of your student in my graduation and post graduation. So I am feeling very proud that I am your student, and right now also I am feeling like I am your student and you're my teacher. So thank you, sir, for always supporting me and motivating me. Let's start now. Dr. Neeraj Upmanyu, sir. Currently, sir is Dean Faculty of Pharmacy, Head of Institute and Professor, School of Pharmacy and Research, People's University, Bhopal. Sir is having more than 20 years of teaching and research experience. Sir is also ex-member of Central Council in Pharmacy Council of India, New Delhi. Sir has served as nominated member in Educational Regulation Committee in Pharmacy Council of India, New Delhi. Nominated member in Foreign Equivalence Committee in PCI, New Delhi. Sir has also served as chairman in Syllabus Committee in Pharmacy Council of India. Sir is also ex-vice president, APTI MP State Branch. Sir has worked as joint secretary in Association of Registered Pharmacists. Sir has also awarded with travel grant from ICMR New Delhi and MPCST Bhopal for attending international conference at Amsterdam, Netherlands, for the presentation of poster and oral scientific paper. Sir has also received one project worth rupees 4.5 lakhs from sanctioned by MPCST Bhopal.
Sir has numerous publications in various national and international publications, books publications. Sir has attended more number of FDPs sponsored by various reputed organizations. Sir has delivered guest speaker in various seminars and faculty development programs sponsored by AICTE, ICMR, MPCST, and UGC. Sir has also guided so many students for their PhD and MPharm projects. Sir has also the editorial board member of various international and national journals. Some of them are International Journal of Pharmaceutical Science Review and Research, Journal of Medicinal Plant and Herbal Therapy Research, UK. Sir is also the life member of various organizations like APTI, CSI, IPA, ARP, LASA, etc., and many more. So with such a vast achievements, awards, and honors, I would like to request our today's speaker, Dr. Neeraj Upmanyu, sir, to grace us with his golden words. Sir, please welcome, sir. Thank you, Survi. If you permit me, I will off my camera because it will be more clear. I hope I am audible right now. Yes, sir, you are completely audible, and sir, you Okay, can okay. switch off your video. Yeah, It's up to you, sir. Thank you for the permission. I'm just sharing my slides. Kindly confirm me if you able to see it. Is it fine? Is it visible, Surabhi madam? Sir, your slide is visible, but sir, I think Okay. just wait, sir. Yeah, sir, can you please share it once again? No problem. No problem. Yeah, now it's visible. Now it's visible. Just I again share it. No problem. Is it fine now? Visible, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Okay. Thank you. So first of all, greetings from my side, and thank you, Sagar Group of Institution, Sagar Institute of Pharmacy, and a special thanks to Director R.B. Goswami sir and Priyanka madam and Survi madam for providing this opportunity and providing me this platform to use this opportunity, and my congratulations for organizing such a wonderful Atal FDP from 28th to 24th September. It was really a new experience for me because the topic which you have opted for this FDP was really need of the hour. So it was really a wonderful opportunity for me to talk on this particular platform. My greetings to all the respected teachers who are present here in this FDP, and I hope you are safe, your families are safe, and you are doing a wonderful job at your respective places. When coming on to my topic of today's discussion, rather I will take it talk, because you are all learned teachers and we belongs to same fraternity. So I am not different from you. I am one of the teacher who are among from your group. So it is just an opportunity which has been provided by Sagar Group and Priyanka madam, Survi madam, and Goswami sir. So while discussing, you have a lot of discussion for last 2 days. I think the session before me was very wonderful. I was speaking to Survi half an hour ago, and she was telling me that you enjoyed that session. So it is really a need of hour. There are 2 reasons for that. One reason was that whenever we talk always about technical terms, technicality, technical aspects, so really our brain requires a lot of other things, because refreshment is very important. So we have to understand the psychology, because most of the things, your energy, source of energy, your inspiration, your motivation, which comes from this psychology. So it is very important that
these type of discussions are very important. When I was going through this FDP, the topic of that FDP of emotional intelligence with the teaching, so I requested Survi, if you will allow me, because it is really a pride moment when your students are doing well. So I am really feeling proud right now, because she has been one of my very good student and she's doing wonderful job. So my compliments to Survi also. So while discussing with her, I requested her, why don't we discuss about enhancing efficiency and behavioral skills of faculties? Because this is also a need of hour. Now the question arises, why this is need of hour? So before starting my presentation, I would like to say here the conflict of interest, which is very important. There's the views which I have put it. This is my own views, and this is not related with anybody else. And I have taken some of the references from the newspapers, from some other e-content materials. So this is the conflict of interest here I would like to place before you. So moving forward for my this talk, what we are going to, what we are going to discuss here rather than learning. I have put it in learning in the session, put rather emphasis on what we are going to discuss through this presentation. One is, what was the teaching of ancient and modern era? Second one is, what is the expectations from modern teaching? Third important thing is, what really the role of a teacher is and how we can think of to enhance our skills more. And fourth one is teachers behavior skills, and it's important because behavioral skills are very important. I understand that you should be very sound in your technical knowledge, but apart from that, there are several qualities which is always, which should be inculcated in a teacher. My personal perception is that until unless you don't follow the real path of any of the process, you will never be successful. Path in the sense is, you have to follow the code of conduct, you have to follow the professional ethics. So these all are very important, and one of the important in that is behavioral skills. Another thing is, while we were talking about enhancing the skills of the teacher, which is really a need of hour. Why this is a need of hour? Because right now the education for the last 2 years, I always say in my presentations, education is really going through a transformation phase. We have never thought that we will do all our activities, including this FDP. Right now, I am in front of you through the virtual mode. So how transform we have made? Because always we expect that Priyanka madam or Survi madam will call us, sir, you come to our campus. We are organizing this FDP and you have to come and provide a interaction with our participants. So before that, I attended one FDP and I delivered my lecture on the same institute. So for the last 2 years, how drastically the time has changed. And when you're teaching, transition has also be there. So it is important that you have to be very careful. You whenever you think, whenever you churn, whenever you introspect yourself, now teaching has become really more transparent. When we talk to a player, he always say, okay, playing is important, technical playing is very important, but first of all, your mind and body should be healthy. It also implies in the teaching also. Your mind, your body language, your behavior, it is very important when you are interacting with any student. So this is some of the things I would like to put before you for this discussion. When I always talk, I always use this very good, important thing. Teaching is not filling a basket.
teaching is lighting of a fire. You are not here only for your routine job, delivering your students. You are providing the resources. No, you have to ignite the real energy which lies with the student, which is very important. Can any of the participant tell me your experience regarding this real sense of this quotation? आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने इस चीज को महसूस किया हो? I would like to know any of the participant. Because अगर मैं बोलता रहा तो सब सो जाएंगे, क्योंकि आफ्टरनून का सेशन है, वो भी लंच के बाद का है. मैं तो अभी चाय पीता जा रहा था थोड़ा सा और बोलता जा रहा था. तो कोई भी पार्टिसिपेंट जिसको ये जो मैंने कोटेशन आपके सामने रखी है विलियम बटलर ईस्ट की, क्या आपके साथ कभी ऐसा महसूस हुआ है? I would appreciate if any one of you will definitely like to express your views in that. Yes, sir. Actually, I would like to ask your, I feeling- would like to ask your name first and your institution. I'm sorry, Okay, Asha interrupting Gaur. you. I'm Asha Gaur, Okay. Assistant Professor of English in Oriental College of Technology, Bhopal. Mhm. Yes, sir. Like this feeling of fail, I mean, if you say, as a student, have I experienced it or have the students experienced it? Yes, sir. Because sometimes we feel that we are just giving them some knowledge and we are just delivering a lecture. And according to us, our fail has felt that means we have completed the syllabus. But lighting a fire means actually we are igniting a passion for teaching and learning in them. So there is a Yes. difference between these two. Yes. Yes, sir. So I feel that we need to actually ignite a fire in them where it has to burn and they have to create a condition for it to keep burning. Means we have other, I mean, we can be the resource person to do this instead of just filling the pail by just delivering a lecture, completing our syllabus and thinking our work is done. The pail is full, but has it had an impact on the student or not? We don't realize it. So according to me, this is what it is, which I feel applies to our teaching profession. Any example you have got, madam, after sensitizing the students, you have got some good results while implementing this quotation? Anything which you have Yes, done sir, extra because and when we- yes, yeah. Yes, sir. That is like when we always tell them that this is it, this is the syllabus, this is unit 1, this has to be done, right? But then we don't give them extra, material where they can actually think from that side, like critical thinking, or if you call it open-ended questions. We are usually used to these questions where they have a certain answer to the question. But then if we keep an open discussion like we do in communication skills and all, where we have, where they can actually use their head and they can give their own inputs. So that is Yeah. required, where they do a self-study of whatever is given to them, and then later on they discuss and then they tell what is their opinion about that particular topic. Yeah, very true. And what I believe is that the time really has come where I think within 2-3 hours, a student will prepare, they will read your PPTs itself. Now you have to jump up into a different era where you have to give them definitely whenever the students will come in your class, they will say, sir, whatever you are presenting, we have already read this. What you would like to discuss now, it is very important. So at that time, these all habits will definitely matter a lot for each and everybody. For each teachers, we have to prepare accordingly. And in fact, whenever we sensitize our students, whenever we talk with our students, whenever we deliver our student, some of the students really, they sensitize in a well manner. And that provides us a great satisfaction when they perform at different platforms and different levels. So this is very So important. Neeraj and sir, I thank would you, like madam. to share one experience. I'm sorry, I'm Yeah, interrupting, please. but I'm not able Please, to. please, please, myself. please, please. So I'm Sure, Mr. sure, sure. Deepti Vadhavan. I'm the course director at JD Institute of Fashion Technology, New Delhi. It's a private Okay. body and we have affiliations from various universities.
Great. So I've been with JD Institute for past 12 years. So I've taken on almost I think 10 or 15 batches by now. So by profession, qualification, I'm a postgraduate in textile and clothing from Yale University, and I'm pursuing my doctorate right now. Great, So ma'am. I remember one student, I would not define the statement. I think the phrase here is very well defined. I would like to share an experience with you with this statement. I remember that child now. So I had one child, his name was Vaibhav Rishi. So he, in 2013 or 14, I think he had come for the admission in the program, 3 years program. And he had done fashion designing in his school in 11th and 12th. So his father was not very satisfied with his fashion stream and his fashion gist. And he always used to, at the time of counseling, I was asked to counsel him as a director. So I counseled him and his father told me कि क्या मैडम इसने क्या ये डिजाइनिंग कपड़े बनाने का ले लिया, कोई दर्जी ढूंढना बनना है इसने, you know. So that was his attitude. So I made him understand कि सर ऐसे नहीं होता, कहते नहीं ये तो लड़कियों का काम होता है. So I remember his father, he still is in touch with me. So I said नहीं sir ऐसे नहीं होता. You know, big designers are all male as far as we know. कहते नहीं वो male फिर अलग किस्म के बन जाते. But I'm sorry, I'm sharing this. That's an open fact. So वो you know अलग किस्म के बन जाते हैं, जैसे ये करण जौहर हो गया और ये मनीष मल्होत्रा हो गया, ये रोहित बाल हो गया. तो मेरा बेटा ऐसा ना हो जाए. मैंने कहा नहीं सर आप टेंशन मत लो, have faith on me, have faith on our institution, we will deliver the best out of it. तो okay, then he was in touch with me all 3 years and वो प्रोग्रेस पता करते थे और कहते थे मैम मुझे तो कुछ अलग नहीं दिखता. तो हर साल हम JD इंस्टीट्यूट में एनुअल इवेंट करते हैं जिसको हम दी फैशन अवार्ड्स कहते हैं. उसमें बच्चा अपनी कलेक्शन प्रेजेंट करता है. तो लेवल के हिसाब से जैसे फर्स्ट ईयर में बच्चा इंस्टॉलेशन बनाता है, सेकंड ईयर में वो मेल गारमेंट बनाता है, फाइनल ईयर में वो अपनी चॉइस का गारमेंट बनाता है. So every year Vaibhav chose me the mentor कि मैम आप मुझे गाइड करोगे. मेरे फादर तो मेरे को सुनते नहीं है. So and his father didn't turn for 2 of his shows. फाइनल शो में वो आए, उन्होंने मुझे कॉल किया शो 15 दिन पहले कि मैम मैं आ रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि वैभव ने कुछ तो अच्छा काम किया होगा. मैंने कहा आप टेंशन मत लो, आओ जो से. And believe me not you all that child built a collection of 8 garments and he had used the dyes taking you know help support from Litra at that time which changed color with the light. So अगर आप लो लाइट करोगे तो वो कलर ब्राइट हो जाता था, हाईलाइट करोगे तो कलर उस टाइम पे बहुत अनकॉमन चीज थी. अब तो इट्स अ वेरी कॉमन थिंग टू डू, राइट. वो लाइट के हिसाब से वो चीज चेंज होती थी. सो इट वाज 2016, यू कैन इमेजिन. It was something very new and his father came and वो literally मेरे पैर छूने लगे थे, हालांकि मैं उनसे बहुत जूनियर हूँ. वो कहते हैं मैम आपने तो मेरे बेटे को क्या बना दिया. And today that child owns his own brand. He exports to Sweden, US, Europe, and I'm very proud of that child. And his father is still in touch with me. He recently got married. So that's a experience I wanted to share, that knowledge and teaching is not about telling the child that read this chapter and do this या ऐसा ही होता है. It is about giving practical hands-on experience to the child and building that faith to that child, you know, guardian or parent, that your child is in safe hands. So as teachers, I feel, I'm sure all teachers, we have all teachers here. In some or the other way, we are teachers. You know, in admin also is kind of a teacher because teacher तो पढ़ाती है. Admin support भी बहुत जरूरी होता है because how will a teacher teach without a projector maybe or a whiteboard marker or an instrument? So that is provided by admin. So I personally feel being into teaching and admin both ways that you know हमारी responsibility सिर्फ बच्चे तक नहीं है. जो उसके parents हैं, जो उस बच्चे पे invest करें. As a parent myself, you know, I am looking up to my teachers कि you know मेरे बच्चे को, मेरी बेटी को ये टीचर अच्छा पढ़ाएंगे. आज मैं उसके स्कूल में एडमिशन कराने गई, so I was observing the teachers, you know, ये शायद जियाना को पढ़ाएंगे, ये पता नहीं कैसे पढ़ाएंगे, ये थोड़ा strict होंगे. So that's a kind of an image and aura a teacher carries, and that's, you know, in Spider-Man movie it was said. I'm sorry, I'm taking a lot of time, Neeraj sir. No problem. मेरे प्रेजेंटेशन में इसके अलावा कुछ है भी नहीं वैसे भी. With great role comes great responsibility. So that's what a teacher is. So it's a great role and it comes with a great responsibility. दीप्ति मैडम के लिए रियली अप्रिशिएबल मैडम. रियली अप्रिशिएबल. एक यहाँ पर एक हमारे शास्त्रों में एक बड़ी अच्छी चीज लिखी है, तो आपके लिए भी इम्प्लाई होती है. शास्त्रों में हम हमेशा पढ़ते थे गुरु कृपा मिले नहीं, गुरु कृपा बिना मिले नहीं संता.
संतों के दर्शन तब तक नहीं होते जब तक गुरु की कृपा नहीं होती, हाँ जी सर, और जब तक गुरु की कृपा नहीं होती तब तक स्टूडेंट भी ऐसे डेवलप नहीं होते। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। हम लोग भाग्यशाली हैं, मैं हूँ, प्रियंका मैडम है, हम दो लोग तो बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि सेम अल्फा मैटर से हैं। तो हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमको ऐसे गुरु मिले जिन्होंने हमें कुछ ना कुछ करने के लिए प्रेरित किया। आपको एक और चीज शेयर करूंगा आप सब टीचर्स से, आप लोग हंसेंगे भी सुन के। मैं टीचर्स डे पे मेरे जो गाइड हैं वो अब भोपाल शिफ्ट हो गए हैं, तो मैं उनसे मिलने गया, तो मैंने उनको हाथ जोड़ के बस एक ही चीज बोली। सबसे गधा स्टूडेंट था, सबसे लास्ट बैक बेंचर स्टूडेंट था, ऐसा स्टूडेंट था जिसको लैब में जब आप सिखाते थे तो अपना सर पटक लेते थे, भगवान तू कैसे पढ़ेगा। तो मैंने कहा सर वो मुझे दिन याद है और आपकी कृपा नहीं होती, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है वो टेस्ट ट्यूब पकड़ के मुझे सिखाते थे और मैं कहता था सर एक दिन मैं थोड़ा बहुत तो कुछ करूंगा, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लो। और एक दिन की चीज शेयर करता हूँ, ये इग्नाइट से बोल रहा हूँ मैं। एक दिन मैं संडे को प्रैक्टिकल कर रहा था और वो 1:10 पे मेरे पीछे खड़े हुए थे और मैं चौंक गया। मैंने सर आप क्या कर रहे हो संडे के दिन? बोले मैं देखने आया था तुम केमिस्ट्री की लैब में आग नहीं लगा दो। मैंने कहा नहीं सर, मुझे वो प्रैक्टिकल समझ में नहीं आ रहा है, वो बार बार एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिस करूंगा तब समझ में आएगा। तो वो जो फायर था वो टीचर की इंस्पिरेशन ने जगाया मेरे ऊपर, उसका इतना प्रभाव पड़ा कि मतलब एक टीचर संडे के दिन अपनी नींद छोड़ के और वो मेरे साथ लैब में खड़ा हुआ है, कितनी बड़ी बात होती है। तो हमारे टीचर्स के लिए इंस्पिरेशन है। बहुत सारे इफ्स एंड बट्स होते हैं, कोई कहता है सैलरी नहीं मिल रही, कोई कहता है कुछ नहीं मिल रहा, बट ये सब चीजें, एक अंदर का जो सेटिस्फेक्शन है ना वो इन सबसे बड़ा है। तो अगर आप प्रयास करोगे तो सब कुछ मिलेगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दीप्ति मैडम, थैंक यू। या तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं। यही जो मैडम बात कर रही थी, तो राइट नाउ द रोल ऑफ अ टीचर पहले जो था थोड़ा सा डिफरेंट था, और आज के टाइम में जैसे कि एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो रोल ऑफ टीचर भी चेंज हो रहा है। अब रोल ऑफ अ टीचर अब से लेके और आगे तक मेंटोर के रूप में बहुत देखा जा रहा है। सो इट इज नॉट व्हाट टीचर्स टीचेस, इट इज व्हाट लर्नर लर्न। तो जब तक आप मेंटरशिप में नहीं आएंगे तब तक वो लर्नर वाली फीडिंग नहीं आएगी और वो पर्टिकुलर स्टूडेंट लर्न नहीं करेगा। So it is very important that role of a teacher is to guide and mentor students. So learner centering approach must be there. एक important चीज यहीं पर बहुत अच्छी कोट करके लिखी, और it is very very important when you are in teaching and you are trying to inculcate a lot of things into teaching. द्रोणाचार्य की इमेज देखा जाए तो किसके कारण बनी? एकलव्य के कारण। So image of teacher is very important. I always speak to my teachers. I always have a discussion with all of them, and I always used to tell them कि भाई एक चीज का याद रखिएगा, आप लोग अपनी अपनी इमेज को कैरी करेंगे, एंड दैट इमेज विल कैरी टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑफ योर लाइफ। और वो एक इमेज जो आप शुरू में बना लेंगे वो इमेज बहुत लॉन्ग टाइम तक कैरी करती है, और वो इमेज बातों से नहीं बनती, वो इमेज किसी चीज से नहीं बनती। दैट इमेज, हाउ कंसिस्टेंट यू आर, how your delivery should be consistent, your deeds should be consistent. So it is very important. So this is very important right now. अगर हम होलिस्टिक एजुकेशन की बात करें तो ये मुझे एक स्लाइड मिली थी, दिस इज नॉट माय स्लाइड, आई हैव टेकन फ्रॉम समवेयर एल्स। तो एंशियंट टाइम में भी अगर हम देखें तो हम लोग विश्व गुरु कहलाते थे। व्हाई वी आर विश्व गुरु? बिकॉज द एजुकेशन सिस्टम बिल्ट ऑन इंडियन विजन एम्ड एट होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट। मैं थोड़ा सा संस्कृत और हिंदी को बहुत मानता हूँ, तो हमेशा ये चीज बोलता हूँ, शरीर मन बुद्धि और आत्मा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है गुरु शिष्य परंपरा, जिसको मैडम ने अभी बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। एंड आपको नमन मैडम के आप इतनी अच्छी परंपरा को आज तक कैरी कर रहे हो, और हम इन गुरुओं के कारण ही अपने इस एजुकेशन सिस्टम को आगे कैरी करके ले आए। एंड गुरु शिष्य परंपरा जो हम आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी देखते हैं कि होलिस्टिक एजुकेशन की बात करते हैं, वो गुरु शिष्य परंपरा के कारण ही आया। और अगर इस गुरु को आप संधि विच्छेद करो, अगर दो पार्ट में इसको डिवाइड करो, गु मीन्स डार्क और रू मीन्स टू रिमूव और एलिमिनेट। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है वही गुरु है, वही रियल मायने में गुरु है। आज तो गुरु की परिभाषा बहुत अलग तरीके से बदल गई है, इस प्लेटफॉर्म पे तो मैं नहीं बोल पाऊंगा उसको, बट रियली जब भी आप कुछ हल्का महसूस करें तो इस लाइन को जरूर याद करें, तमसो मां ज्योतिर्गमा गुरु साक्षात परम ब्रह्म। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, just it is a matter of your feeling, it is a matter of your deeds, it is a matter of your perception, which is very important. अगर आप
किसी भी होलिस्टिक एजुकेशन और होलिस्टिक लर्निंग की बात करो तो हमेशा तक्षशिला, नालंदा, वल्लवी, विक्रमशिला, उदंतपुरी, इन सबको याद किया जाता है। अगर वानभट्टी की कादम्बरी को आप पढ़ो तो 64 कलाएं उन्होंने नॉलेज और अच्छी एजुकेशन के डिलीवरी की दी है, विच इंक्लूड्स आर्ट, साइंस, वोकेशनल, प्रोफेशनल एंड सॉफ्ट स्किल्स। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज भी हमारे दिमाग में वो ऋषि मुनियों की इमेज है, और उससे अच्छा सिस्टम ना कभी बना था, ना कभी बना है, और ना कभी बनेगा। मैं तो ये बिल्कुल बहुत अच्छे से बोलूंगा। एक और स्लाइड इसी को प्रकाशित करते हुए, where we were in the Gurukul system when the Rama's Janma was there, when the Krishna's Janma was there, and where we are now. We are, I am using the remote technology, you are using the virtual platform, and you are delivering your contents. But आज भी गुरु शिष्य परंपरा हमेशा से कैरी करते आई है और आगे भी कैरी होती रहेगी। अब जब हम एजुकेशन सिस्टम से थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं, तो एजुकेशन सिस्टम कहां से बिगड़ा? तो जब अंग्रेज हमारे पास आए और लॉर्ड मैकेले ने जब इस एजुकेशन सिस्टम को, बिकॉज राइट नाउ वी आर फॉलोइंग टिल डेट, वी आर फॉलोइंग द लॉर्ड मैकेले's एजुकेशन सिस्टम व्हिच हैज बीन प्रोवाइडेड। लॉर्ड मैकेले ने एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया था, आई हैव ट्रेवल्ड टू the every corner of India. I have not seen one person who is beggar, who is a thief. Such wealth I have seen in this country, such high moral value I have seen in this country, and such calibered people is there. I don't think we would ever conquer this country unless we break the every backbone of this nation, which is our spiritual and cultural heritage. And therefore, I propose that we replace our old and ancient education system, our culture, with our English culture and English knowledge. So again, we are trying to jump up into that education system. We focus कि आप ध्यान करिए, आप योगा करिए, ये सारा पुराना दिया हुआ सिस्टम है जिसको हम फिर से रीगन करने की कोशिश कर रहे हैं, और वही उसका कंसोलिडेशन था। तो ये लॉर्ड मैकाले ने ये स्टेटमेंट दिया था ब्रिटिश पार्लियामेंट को, जो स्टेट जब एड्रेस कर रहे थे 2 फरवरी 1835 को। सो ही प्रोवाइडेड दैट स्टेटमेंट। Dr. APJ Abdul Kalam साहब, he is really a great scientist, but he was also a great teacher. और उन्होंने भी टीचिंग के बारे में हमेशा यही बोला है, टीचिंग is a noble profession that shapes the character, caliber and future of an individual. If the people remember me as a good teacher, that will be the biggest honor for me. And APJ Kalam was accepted as a teacher by all the students of India. Why they have accepted? Though he was a scientist, he was a president of our India, but because of his simplicity, which is very important. यहाँ पे एक और important चीज कोट करना चाहूंगा, एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हमेशा बराक ओबामा साहब जो एक्स यूएस प्रेसिडेंट है, वो हमेशा बोलते हैं एजुकेशन कोई डिग्री का नाम नहीं है, एजुकेशन कोई सर्टिफिकेट नहीं है, एजुकेशन उस चीज का प्रूफ है जो आपके एटीट्यूड में दिखता है, जो आपके एक्शन में दिखता है, जो आपके लैंग्वेज में दिखता है, और जो आपके बिहेवियर में दिखता है, जिसको मैं बात करने वाला हूँ बिहेवियर की। तो दिस जो रियल लाइफ में जो दिखता है ना, ये चीज सारी चीजें, ये रियल सेंस में एजुकेशन है। आज की जनरेशन तो बहुत गलत डायरेक्शन में जा रही है, और हम एज ए टीचर जितना हम उनको समझा सकते हैं वही समझा पाएंगे, बट दिस इज द रियल सेंस ऑफ एजुकेशन, दिस इज द रियल एसेंस ऑफ एजुकेशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बैकड्रॉप की बात करें इसके, तो लाइफ एक्सपीरियंस इम्पैक्ट द वे पीपल लर्न। आपको याद होगा तो आप एक स्टेटमेंट हमेशा सुनते रहते हैं, जर्मनी में एक टीचर को सबसे ज्यादा इज्जत दी जाती है, ना वहां आईएएस को इतनी इज्जत दी जाती है, ना किसी ब्यूरोक्रेसी को इतनी इज्जत दी जाती है, किसी को नहीं, सबसे टॉप लेवल पे वहां टीचर आता है। हमारे नेशन में भी ये आना बहुत जरूरी है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट चैलेंजेस फॉर फैकल्टी टू बी इफेक्टिव इन टीचिंग एंड टू मेक टीचिंग एंड लर्निंग रेलेवेंट। बट इस चीज को प्रूव करने के लिए हमारे पास चैलेंजेस हैं, बिकॉज वी हैव टू प्रूव ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि केवल सोसाइटी डाइल्यूट हो रही है, टीचिंग प्रोफेशन भी बहुत डाइल्यूट हो रहा है। So we have to work very hard, including me also. The teacher's role may have changed at the present time, but his importance and responsibility of personality building has become more relevant really. So this is what this slide is trying to tell. ये सबके सामने मैं एक समस्या पुट करना चाहूंगा, जो मैंने कुछ दिन पहले एक आर्टिकल आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में, और जो राइटर थे वो इस आर्टिकल के वो थे डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज।
ये क्यों मैं करना चाहूंगा, क्योंकि ये भी आपके बिहेवियर, आपके मॉरल वैल्यूज, आपके एथिक्स, आपकी साइकोलॉजी से बहुत हद तक अफेक्टेड है। और देखिए इस आर्टिकल में उन्होंने क्या लिखा था, पैंडेमिक लेसन्स फॉर साइंटिस्ट स्टूडेंट बी ऑनेस्ट। और आगे उन्होंने एक लाइन लिखी थी, रिसर्च फ्रॉड एग्जाम चीटिंग आर टू वरिंग आउटकम ऑफ साइंस एंड एजुकेशन इन कोविड टाइम्स। सो दिस इज अ रियल चैलेंज दैट वी एज अ टीचर इज हैविंग। इन्होंने दो बड़े अच्छे एग्जांपल्स दिए, अगर आप इस आर्टिकल को कभी पढ़ने का मौका लगे तो जरूर पढ़िएगा। पहला एक, देखिए आपकी साइंस, आपकी नॉलेज और आपका जो परसेप्शन है वो सोसाइटी को कितना अफेक्ट कर सकता है, ये रियल टाइम एग्जांपल है। क्योंकि for the last 2 years we are going through this pandemic, and this pandemic really affect each and every corner, not only teaching but the lifestyle of a person, lifestyle of society, everything, whatever you can touch up, your economy also, jobs, everything was there. They have quoted very good two examples which really we have to understand and we have to think again and again. पहला एग्जांपल जो इन्होंने दिया, आपने सभी ने सुना होगा कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के बारे में बहुत सा डॉक्टर्स ने बोला था कि इसको प्रिस्क्राइब करो, कोविड में बहुत फायदेमंद है। आपको जान के ये हैरानी होगी, दो विश्व के बड़े इंपॉर्टेंट जर्नल हैं, एक लांसेट और एक न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन। उन्होंने ये आर्टिकल छापे अपने जर्नल्स में और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन और उसके कार्डियोवास्कुलर साइड इफेक्ट्स के बारे में बताया। और आप जान के हैरान होंगे, ये दोनों पब्लिकेशन एक जैसे थे एंड एक जैसे कंटेंट थे, एक जैसी सब चीजें थी, और दिस वाज अ न्यू स्कैंडल फॉर द सोसाइटी। हालांकि पेपर्स बाद में डिट्रैक्ट हुए, बट हमारे साइंटिफिक एथिक्स कहाँ चले गए, हमारी मॉरल वैल्यूज कैसे, एक आर्टिकल को आप पढ़ रहे हो, उसको कर रहे हो और उसी को सेम आपने दूसरे जर्नल में भी छाप दिया, हाउ कम इट इज पॉसिबल। एक और एग्जांपल उन्होंने दिया, एनल्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन, जिसमें बताया गया, उन्होंने बताया, अप्रैल 2020 में ये आर्टिकल आया था और उन्होंने बताया कि फेस मास्क इज इनएफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ कोविड, जो कि बाद में जाके गलत प्रूव हुआ। तो ऐसी इंफॉर्मेशन सोसाइटी को कितना इम्पैक्ट कर सकती है, यानी बिना किसी सॉलिड रीजन के, बिना किसी साइंटिफिक स्टडी के, बिना किसी टेक्निकल चीजों के, हाउ यू कैन से दैट दिस मास्क इज नॉट इफेक्टिव इन कोविड, दो वी आर यूजिंग अगेन एंड अगेन दिस कोविड। आइवरमेक्टिन के ऊपर भी ऐसे फॉल्स क्लेम हुए थे। इनफैक्ट उन्होंने आर्टिकल में क्लेम किया है कि नोबल विनर्स भी चीटिंग कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारी सोसाइटी कैसे जाएगी? ये आर्टिकल मेरे पुट करने का कि वी एज अ टीचर वी आर द रोल मॉडल्स, सो वी ट्राई टू टेल देम, क्योंकि अगला उसमें एक लिखा था डिसऑनेस्ट स्टूडेंट्स। मेरा ही बेटा एग्जाम देता है तो मैं कई बार देखता हूँ कॉपी पलट रहा होता है, मैं कहता हूँ भाई कोई फायदा नहीं है, कितना भी नंबर ले आएगा तू 95% क्या 110% भी ले आएगा तो कोई फायदा नहीं है। केवल पढ़ने, रीडिंग हैबिट को कायम रख भाई, और कंसिस्टेंसी को। मैं जब भी अपने बच्चे को बोलता हूँ तो ये बोलता हूँ केवल कंसिस्टेंसी को कायम रखो। कंसिस्टेंसी एंड रीडिंग हैबिट्स इज मच इंपॉर्टेंट। एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा था, उस डिस्कशन में वो यही बता रहे थे कि पिचई के बाद, सुंदर पिचई के बाद अब इंडिया में सीईओ क्यों नहीं डेवलप हो रहा है? तो उसका एक बड़ा अच्छा रीजन यही निकल के आया कि सुंदर पिचई साहब के बाद बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का हैवी यूज होने लगा और रीडिंग हैबिट्स हमारी खत्म हो गई। जब रीडिंग हैबिट्स हमारी खत्म हो गए तो हम डिपेंडेंट बहुत हो गए, जब डिपेंडेंट हो गए तो हमारे आइडियाज नहीं आ रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी जितना बून है ना, उतनी बड़ा चैलेंज भी है। तो टीचिंग प्रोफेशन के लिए, साइंटिफिक फ्रेटर्निटी के लिए, these are the real challenges and we have to understand these challenges and accordingly we have to act. So this is the reason why I have put it this this article. अब अगर हम आगे आते हैं तो थोड़ा सा हम शास्त्रों में भी जाते हैं, तो टीचर के बारे में एक बड़ी अच्छी चीज लिखी गई है, आचार्यता पादमादत्ते पादम शिष्य सुमेधया पादम स ब्रह्माचारभ्य पादम काल चक्रेण च। एक स्टूडेंट है, वो क्वार्टर ऑफ नॉलेज लेता है अपनी टीचर से,
that is called classroom teaching. A quarter of knowledge लेता है वो अपने intelligence से, that is called self study. A quarter from the fellow students is colleague and group activities, projects and all, and quarter in due course of time, which is a life learning process. तो जो उसका बेसिक स्टार्ट होता है वो उसके रोल मॉडल से चालू होता है, दैट इज क्लासरूम टीचिंग. एंड हु इज टेकिंग केयर ऑफ दिस क्लासरूम टीचिंग? वी एज अ टीचर. सो वी आर द रोल मॉडल्स ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट. एक माँ जब अपने बच्चे को हाथ पकड़ना सिखाती है तो सबसे पहले माँ जो रोल मॉडल होता है बच्चे के लिए वो उसकी माँ होती है. इसी तरीके से जब वो स्कूल लेवल या कॉलेज लेवल पर उसका जो रोल मॉडल होता है, यार ये टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है. हमको जब टीचर्स डे पे लोगों के कॉल आते हैं, 15 साल पुराने स्टूडेंट के आते हैं, तो लगता है कि नहीं यार कुछ तो पढ़ाया हमने. बट इट रियली कम्स फ्रॉम योर ओन एफर्ट्स, योर डेडिकेशन. जैसा मैडम ने बताया उनको कितनी खुशी हुई थी जिस प्लेटफॉर्म पे उनके टीचर स्टूडेंट ने परफॉर्म किया और उनके माता पिता उनके चरणों में समर्पित हो गए. बट इट रियली रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ ऑनेस्टी, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्किंग. अगर हम स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव से देखें तो व्हाट आवर स्टूडेंट्स आर, they are right now they are very good surfers, scanners, but not reader and digesters. मैंने आपको एग्जांपल दिया सुंदर पिचई साहब का. तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है टीचर के लिए. वो बहुत अच्छे सर्फर हैं, बहुत अच्छे स्कैनर हैं, स्कैनर एक से एक मिलेगा उनके पास, ना वो अच्छे रीडर बचे ना वो अच्छे डाइजेस्टर बचे. मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, अगर स्टूडेंट होता तो अभी तक तो आधे भाग चुके होते. अभी एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ आपको. 5 दिन पहले क्लास ले रहा था मैं, तो 6-8 लोगों ने क्लास अटेंड की हुई थी, उसमें से केवल एक बच्ची आंसर दे रही थी, बाकी को मैं चिल्ला चिल्ला के पूरी क्लास में मर गया कि भैया कुछ तो बता दो, बट उनका माइक ऑन नहीं हुआ. सो दिस इज अ रियल चैलेंज बिकॉज दे डोंट एक्सेप्ट योर टीचिंग. बड़ा मुश्किल है. तो उनको इस तरीके से प्रेजेंट करना पड़ेगा कि दे शुड टेक इंटरेस्ट, एक्सपेक्ट कांस्टेंट एंड इमीडिएट फीडबैक, वांट डायरेक्टनेस ओवर सब्टली, टेक्नोलॉजी सेवी बट crave personal and contact, and always hurried know what they want and want to learn. So it is very important that we have to understand all these things. हमेशा मैं जब भी अपना लेक्चर लेता हूँ सुरभि मैम को तो हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, मैडम काइंडली गिव मी योर ऑनेस्ट फीडबैक, because it is very important whenever I interact with my fraternity of teachers or whenever I interacting with my students. इनफैक्ट मैं जब क्लास लेता हूँ तो एक अच्छे बच्चे को आइडेंटिफाई कर लेता हूँ, उसको हमेशा फोन लगाता हूँ, बेटा बताओ ना कुछ क्या इंप्रूव करना है. So which is very important. So your immediate feedback is very important. आप उसको अलग तरीके से मत लीजिए, आप उसको अपने अहम पर मत लीजिए, अरे मैं पढ़ा रहा हूँ तो बढ़िया ही पढ़ा रहा हूँ. नहीं, हम तो सब प्रॉब्लम कर देता. अब हम जब फैकल्टी की तरफ मूव करते हैं, बहुत परेशान है वो आज के टाइम में, 2 साल से तो बहुत परेशान है. आई नो द चैलेंजेस, बट स्टिल healthiest and wealthiest of generations to date, redefine traditional values, hardworking, they are really passionate and believe in hierarchy. और मैं नमन करूंगा अपने सारे फैकल्टी मित्रों को कि उन्होंने इस पेंडेमिक में हर रूप में काम किया. उन्होंने अपने शिष्यों को निराश नहीं होने दिया, कितना भी वो पेन में रहे, लेकिन अपने शिष्यों को वर्चुअल माध्यम से डिलीवर जरूर किया. तो आप सभी गुरुजनों को मेरा नमन है ना. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब जब हम टीचर के बारे में समझते हैं, सोचते हैं, तो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो है थिंकिंग, क्योंकि थिंकिंग से आपकी प्रायोरिटीज डिसाइड होती हैं एंड इट अफेक्ट्स योर प्रायोरिटीज आल्सो. आर यू रियली इंटरेस्टेड इन टीचिंग? मैं जब भी टीचिंग का इंटरव्यू लेता हूँ, किसी से बात करता हूँ, तो मैं ये पूछता हूँ, बाई चॉइस आए हो भैया कि टीचिंग में इंटरेस्ट है? आप जान के हैरान होंगे, 90% बोलते हैं भैया पति यही है या पत्नी यही है, इसलिए भोपाल में ही काम करना है, इसलिए टीचिंग कर रहे हैं, एक जना तो थोड़ा फ्री रहे. बहुत कम लोग हैं जो बोलते हैं नहीं, आई हैव अ पैशन, आई एम बाय चॉइस, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकंड टर्म यही बोला, आर यू हियर बाय चॉइस और बाय चांस, एंड आर यू रियली अ लाइफ लॉन्ग लर्नर? टीचर अगर बन गए हो तो ये तो वैसे हर जगह के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपने अंदर थोड़ा सा अहम का 5% पूना त्याग के उसमें लाइफ लॉन्ग लर्नर को पेस्ट कर लो. कॉपी यहां से कर लो और उस जगह पे पेस्ट कर लो. जैसे हम बहुत सारी चीजों को कॉपी और पेस्ट करते हैं ना, अच्छे फिगर को मैंने बहुत जगह यहाँ पेस्ट किया हुआ है, वैसे ही मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, काइंडली पेस्ट इट any of your corner of your mindset, or while thinking your priority, kindly paste it. You have to be lifelong learner, because if you are lifelong learner, if you want to become a role model,
You have to learn and you have to think, rethink and again, ऐसे बोलते हैं ना, you have to learn, unlearn and again relearn. So which is very important. So how much time you used to devote for a class? Class preparation भी बहुत important है. अब जब expectations की बात करते हैं कि आउटसाइड वर्ल्ड से स्टूडेंट्स क्या एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट्स की रहती है. अब मैं चूंकि फार्मेसी वाला हूं तो मैंने फार्मेसी का एग्जांपल लिया हुआ है. फार्मेसी नॉलेज, बेसिक कोर सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए, फार्मेसी को छोड़ दें तो. प्लानिंग एबिलिटीज, प्रॉब्लम एनालिसिस, मॉडल टूल यूजेस, लीडरशिप स्किल्स, प्रोफेशनल आइडेंटिटी, फार्मास्यूटिकल एथिक्स, कम्युनिकेशन, सोसाइटी को कैसे कैटर कर रहे हैं, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग. ये स्वॉट एनालिसिस करते हैं हम. आउटसाइड वर्ल्ड एम्प्लॉयर से, कंज्यूमर से, कस्टमर से, ये सारी चीजें एक्सपेक्ट करता है. टीचर से भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस इस तरह की होती हैं, सो विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो. अगर हम स्वैक एनालिसिस को और गहराई से देखें तो टीचर की अगर स्वैट एनालिसिस करें तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है? पैशन फॉर टीचिंग, गुड इंटरपर्सनल स्किल्स, डिग्री इन एजुकेशन, good critical analytical skills, excellent communication skill, plenty of work experience, good with public speaking, financially sound, young and healthy and supportive spouse. ये उसकी strength होती है. Weakness क्या है उसकी? No or little relevant experience sometime, lazy and suffer from procrastination, lack of concentration and attention, limited subject knowledge, stretch management skill is lacking, poor to dealing with the conflicts, low in esteem, young children to take care of. There are sometimes this is challenge. I'm also with the same challenge. Dependent in-laws, life far from the school or college. Opportunities uske liye kya hai? If you really talk about the opportunities, I have a job offer in a college which suits my temperament better. I could go for my higher education studies, offered a scholarship. So there are some opportunities are there. Threats kya hai? No PhD guide is there. My department has not good library. Academic environment is not good. The syllabus, the chapters which I am not comfortable. So accordingly, you have to write your strength, weakness, opportunities and challenges. तो टीचर को भी अपने SWOT एनालिसिस हमेशा करते रहना चाहिए. इसको SWOT एनालिसिस आजकल बोलते हैं. पहले SWOT बोलते थे, अब SWOT बोलते हैं. अगर हम पैराडिग्म शिफ्ट की बात करें टीचिंग के अंदर, तो चेंजिंग लैंडस्केप ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर्स डिमांड चेंजेस इन द वे वी डिजाइन अवर करिकुलम, टीच एंड डिलीवर द कोर्सेज एंड द VSS. इसमें मैं यहाँ पर अपने कलीग से भी हमेशा बात करता हूँ, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे भी बात करता हूँ, और मैं बहुत सारी चीजों से डिसएग्री करता हूँ. उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आजकल इनकलकेट करना चाहिए, क्योंकि IQ स्टूडेंट्स का बढ़ चुका है, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग पे बहुत फोकस करना चाहिए. प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग पे फोकस करने से आप स्टूडेंट के अंदर इंटरेस्ट जगा पाएंगे. अपने बच्चे को बताइए कि यार, एक एग्जांपल देता हूँ, यार एक मशीन है, ये मशीन कुछ प्रॉब्लम कर रही है बार बार. सोचो और सर्च करो कि इस मशीन को कैसे सही कर सकते हैं. यार मैं एक टैबलेट बना रहा हूँ, ये टैबलेट कभी पतली रह रही है, कभी थिकनेस बहुत ज्यादा हो रही है, कभी थिकनेस बहुत गड़बड़ हो रही है, शेप ओवर राउंड नहीं हो रहा है, शेप गड़बड़ हो रहा है. तो क्या, थोड़ा सर्च करो यार, क्या प्रॉब्लम है, क्या पंचिंग में प्रॉब्लम है या किसी और में प्रॉब्लम है. तो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, इनफैक्ट मैं आपसे एक शेयर करूंगा, बहुत ओपनली शेयर करूंगा. मैंने कुछ एग्जाम्स को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था. उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, वो क्वेश्चंस क्रैमिंग और क्रैमिंग के बहुत ज्यादा थे, और बहुत अच्छे लेवल का वो एग्जाम था, बहुत अच्छी पोस्ट थी. वो प्रॉब्लम बेस्ड चीजें नहीं पूछ रहे थे. तो ये सिस्टम हमको कहीं ना कहीं इसको चेंज करना पड़ेगा. एंड वी एज अ टीचर, वी आर देयर टू पैराडाइम शिफ्ट फॉर टीचिंग. तो इसमें चाहे करिकुलम डिजाइन की बात करें, चाहे डिलीवरी की बात करें, चाहे असेसमेंट की बात करें, और इन सब के इंपॉर्टेंट मैं जो समझता हूँ, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नहीं भी यही बोलती है, दैट शुड बी डेफिनेटली इनकलकेटेड. पैराडाइम शिफ्ट फॉर टीचिंग की बात करते हैं, तो जैसे मैं आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहा था, पीडागॉगी हैज चेंज्ड टू एंड्रागॉगी एंड टीचर विल वर्क एज अ फैसिलिटेटर. तो टीचर की डेफिनेशन भी थोड़ा चेंज होने वाली है ना. व्हाट टू लर्न, हाउ टू लर्न एंड हाउ टू टीच. सो NEP 2020 gives teacher autonomy in selecting appropriate pedagogy and encourage them to ensure
socio-emotional learning of the student, which is a critical aspects of holistic development. अगर पैराडाइम शिफ्ट की बात करें तो ये पिक्चर आपको बड़ा अच्छा बताएगी. आपको दोनों में से बहुत आसानी से राइट हैंड साइड की पिक्चर बहुत कैची दिख रही है, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को भी हमको बहुत कैची बनाना पड़ेगा. मेरे सामने भी अगर इतने मल्टीपल कलर्स के जूसेस रखे होंगे तो डेफिनेटली आई विल ऑप्ट दैट. ये तो बहुत मरा मरा ऐसा लग रहा है, मालूम नहीं इसमें क्या डाला होगा, कुछ डाला भी है कि नहीं, बहुत फीका कलर दिख रहा है. जब इस पिक्चर को देखेंगे तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को आप जितना अट्रैक्टिव बनाओगे, तो जो पैराडाइम शिफ्ट की बात करते हैं टीचिंग में, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, तो यू हैव टू मेक इट वेरी कैची, यू नो. एजुकेशन को जब एम्ब्रेस की बात करते हैं, उसको जब हम और अडॉप्ट करने की बात करते हैं, तो जनरेटिंग लव फॉर द सब्जेक्ट, मोटिवेटिंग, गिविंग इंस्ट्रक्शंस, फैसिलिटेशन, ट्रेनिंग एंड मेंटरिंग, दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग. मैंने थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया आपको, तो ये सारी चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ये बहुत सारी चीजों को आप कर भी रहे होंगे, बट दिस इज माय ड्यूटी टू डिस्कस विद ऑल ऑफ यू. लर्नर सेंटर्ड एंड परफॉर्मेंस बेस्ड, तो फैसिलिटेशन का, जब भी आप किसी स्टूडेंट को फैसिलिटेट कर रहे हैं, आप एज अ फैसिलिटेटर आप रोल प्ले कर रहे हैं, तो दिस इज द मंत्रा. एडल्ट लर्न बेस्ट व्हेन दे नो देयर इज समथिंग इन इट फॉर देम, सो स्ट्रक्चर योर टीचिंग दैट वे, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप दो लोगों के स्टेटमेंट देखोगे जो अपने आप में बहुत ग्रेट रहे हैं, चाहे वो विंस्टन चर्चिल हो, चाहे वो अल्बर्ट आइंस्टीन हो. विंस्टन चर्चिल ने बोला, लाइक टू लर्न, हेट टू, सीखना चाहता हूं लेकिन कोई मुझे टीचिंग वे में सिखाए उससे मैं नफरत करता हूं. देखिए फिर भी कितने महान बने विंस्टन चर्चिल. अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या बोला, आई नेवर टीच माई पीपल, आई ओनली अटेम्प्ट टू प्रोवाइड द कंडीशन इन विच दे कैन लर्न. उन्होंने एक वर्किंग कंड्यूसिव एनवायरनमेंट एक बनाया जिसके कारण बच्चे लर्न कर सकें. मैं अपने बच्चों को टीच करना पसंद नहीं करता, मैं उनसे इंटरेक्ट करना पसंद करता हूँ, उनको एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देना पसंद करता हूँ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक किस्सा और सुनाना चाहूंगा यहाँ, क्योंकि ये टीचिंग लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी जब बात कर रहा था तो ये हमेशा देता हूँ. आपके 5 मिनट और लूंगा. एक यूएस में एक बहुत बड़ा व्यापारी था, उसकी मशीन खराब हो गई. ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, हम टीचर हैं तो. उसने करीबन 85 इंजीनियर्स को कॉल किया और उसकी मशीन को कोई ठीक नहीं कर सका. एक दिन वो उस कंपनी का सीईओ भी था, वो मालिक था. उस सीईओ ने एक दिन उसका एक जो साथ में एम्प्लॉय था, उसने बोला कि सर मैं एक बहुत अच्छे आदमी को जानता हूँ, अगर आप परमिट करें तो उसको बुला लूं. बोले बुला लो भैया, 85 लोगों को बुला चुका हूँ, 86 आदमी को बुलाने में क्या प्रॉब्लम है. बोला ठीक है सर, बुला लेता हूँ. वो आया, तो उसने बोला कि सीईओ से बोला कि सर क्या मैं आपकी मशीन को थोड़ी 5 मिनट के लिए देख सकता हूँ. बोले व्हाई नॉट भैया, आपको सही करने के लिए बुलाया है, बिल्कुल आप देखो इसको. वो मशीन को 5 मिनट तक देखता रहा. देन ही आस्क्ड दैट पर्सन, मे आई हैव अ हैमर प्लीज. ही रिक्वेस्टेड टू सी यू. या श्योर, वी हैव अ हैमर. हैमर लाई गई. ही हैमर्ड एट 2-3 प्लेसेस. 2-3 बार मशीन को उसने हैमर किया तो वो मशीन चालू हो गई. एवरीबडी वाज शॉक्ड. When the bill came, it was $1,000. सीईओ के पास वो बिल गया, उसने बोला यार ये $1,000 कैसे, हैमर को हिट करने के $10 लगते हैं यूएस में, तो सबसे $30 हुआ. He rang that person. So you are charged $1,000. Why that? He told to the CEO, $30, $10 each for hammering that machine, and $917 where to hit. The moral of the story is we have to provide the skills where to hit to our students. आपको भी मालूम होना चाहिए कि आपको स्टूडेंट्स को कहाँ हिट करना है, और जब आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हैं तो उस स्टूडेंट को ये सिखाएं कि कहाँ पे हिट करना है, कैरियर में कहाँ पे ग्रोथ पाना है. So which is very important, So these are the important things which is very important. And there is considerable evidences that the particular personality characteristics of a teacher have a great influence of behavior, learning and adjustment of a student. जो भी आप पढ़ा लिखा रहे हैं ना, उसका उसके बिहेवियर पे, उसके लर्निंग प्रोसेस पे और उसकी लाइफ के एडजस्टमेंट करने पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है. And there is certain evidences
that certain personality characteristics are more desirable than any others for teaching in general. And it is a accepted truth that effective teaching depends upon appropriate matching of a particular situation. So, which is very important, you know. Who is a teacher? अगर टीचर को हम और डिस्कवर करने की कोशिश करें तो Coombs defined effective teacher as a unique human being who really, you know, learn to use himself effectively and efficiently. And competent teacher is who has achieved mastery of his subject, has improved his skill in providing adequate and appropriate learning experience. So, which is very important. There are different sort of teachers. One is dynamic teacher who can understand the process of education and relate education to other aspects of life. And one is true teacher, who is one who can immediately come down to the level of a student and transfer his soul to the student. तो ये आपके ऊपर है कि आप इफेक्टिव टीचर बनना चाहते हो, आप कॉम्पिटेंट टीचर बनना चाहते हो, आप डायनामिक टीचर बनना चाहते हो, या आप ट्रू टीचर बनना चाहते हो. लेकिन ट्रू टीचर आत्मा से, मन से और उस लेवल तक आकर टीचिंग करोगे तो जो सेटिस्फेक्शन का लेवल होगा ना वो बहुत डिफरेंट होगा. अगर टीचर को और आप एक एक उसके पार्ट को समझना चाहो, सो टी इज फॉर ट्रेन, E for is educated, A is for ability, C is for character, H is for healthy, E for is for exercise and R for is regular. कितना ब्यूटीफुल ढंग से टीचर के एक एक पार्ट को उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया कि हम कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, हम एक ट्रेंड आदमी है, हम एक एजुकेटेड आदमी है, हम एक एबिलिटी वाले आदमी है, हमारे अंदर एक करेक्टर है, हम हेल्थ के प्रति कॉन्शियस हैं, हम एक्सरसाइज को भी बिलोंग करते हैं, and we are regular, we are consistent in our deeds and in our performance. So ये सारी क्वालिटी मिलके एक कितना बड़ा आदमी, कितना एक रेस्पॉन्सिबल आदमी बनाता है जिसको हम टीचर बोलते हैं. Just you have to empower, you have to enhance, you have to engage and you have to enable them. अब आता है हमारे मुद्दे की टॉपिक जिसमें मैं 10-15 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा, बिहेवियर एंड बिहेवियरल मॉडिफिकेशंस. यू नो, जब हम टीचिंग की बात करते हैं तो उसमें एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो आता है बिहेवियर. आप किसी बच्चे से, मैं अपने कलीग्स को भी हमेशा बोलता हूँ, जब भी आप अपने स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर रहे होते हो, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जब उससे इंटरेक्ट कर रहे हो तो आप उसकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करो. हॉस्टल जाओ तो हॉस्टल में उसकी प्रॉब्लम को, अगर आप रियल में उसकी प्रॉब्लम को समझ गए और आपकी छाप अगर उस बच्चे पे पड़ गई आपके व्यवहार से, वो बच्चे की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है. बस आपको उस लेवल तक एफर्ट्स करने पड़ेंगे, उस लेवल तक कमिटमेंट करना पड़ेगा. तो बिहेवियर इज समथिंग व्हिच कैन रियली डू वंडर्स. और टीचर बिहेवियर तो यू नो वेरी इंपॉर्टेंट. नॉट ओनली डू टीचर्स इन्फ्लुएंस स्टूडेंट बिहेवियर बट स्टूडेंट इन्फ्लुएंस टीचर बिहेवियर एज वेल. और ये जब आप उसमें अच्छा व्यवहार, अच्छा आचरण लाओगे, टीचर के बिहेवियर को डेफिनेटली स्टूडेंट के बिहेवियर से भी इफेक्ट होगा. बिहेवियर मॉडिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो करेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टीचर इन फार्मेसी, अगर फार्मेसी का एग्जांपल लिया क्योंकि मैं फार्मेसी का आदमी हूँ, मुझे ज्यादा चीजें समझ में नहीं आती हैं, तो हमेशा फार्मेसी के एस्पेक्ट से देखेंगे. एग्जांपल है, कीप सेल्फ अवेलेबल टू द स्टूडेंट रादर एज अ रिसोर्स पर्सन. अगर वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में तो एज अ काउंसलर और एडवाइजरी रोल. और हमेशा सो स्किल्स इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, making a student feel free to ask questions or to ask help. तो ये इंपॉर्टेंट चीज है. तीसरा है डेमोन्स्ट्रेट ओन एबिलिटी एज अ टीचर, और टीचिंग प्रैक्टिस हमेशा करते रहिए. ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे आप डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हो, चाहे वर्क. मोटिवेशन बहुत जरूरी है. आज एक बड़ा चैलेंज है कि जब भी हम एक्टिविटी कराते हैं, बच्चा आता ही नहीं आता तो स्पीकर ऑफ करके बैठ जाता है, वो पार्टिसिपेट नहीं करता है. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करिए, है ना. टीचर बिहेवियर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, विच इज करेक्टराइज्ड. मैं तो एक ही चीज से बोलूंगा, इसमें तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं. आदमी के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं. एक तो उसकी जो अहम है उसको वो एक कॉर्नर में कर दे, लाइफ लर्निंग प्रोसेस के लिए तैयार रहे. और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी, यू नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तभी क्वालिटी, क्वांटिटी, क्लासिफाइबिलिटी सारे टीचर के बिहेवियर में आ जाएगी और वो क्लियरली ऑब्जर्वेबल होगी, है ना. पर्पस क्या होता है इफेक्टिव टीचर बनाने का? यू नो, बहुत
अलग अलग तरीके से वो हेल्प कर सकता है, वही बातें बार बार रिपीट हो रही हैं, एनकरेज कर सकता है, फैसिलिटेट कर सकता है, अंडरस्टैंडिंग कर सकता है, टॉलरेशन पावर आ जाती है, वो दूसरे को भी टॉलरेट करना सिखाता है। तो ये सारी चीजें आपकी बिहेवियर स्किल्स से आएंगी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम रोल ऑफ टीचर देखें तो डायरेक्टर ऑफ लर्निंग भी है, वो लाइजनिंग भी है, वो मीडिएटर प्रोग्रामर बिल्डिंग भी है, और प्रोफेशनल मेंबर ऑफ अ सोसाइटी भी है। और कॉम्पिटेंसी उसके अंदर बहुत जरूरी है, वो अच्छा बोल भी सके, अच्छा लिख भी सके, वो एक अच्छा स्कॉलर भी हो अपने अपने सब्जेक्ट का, जैसे मैंने यहाँ फार्मेसी का एग्जांपल लिया। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और कॉम्पिटेंसी उसके अंदर कहीं ना कहीं डेवलप होनी चाहिए। अगर उसके अंदर कॉम्पिटेंसी डेवलप होगी तभी तो वो उसको ट्रांसफॉर्म करके अपने स्टूडेंट तक ले जा पाएगा। So be able to make an accurate, critical assessment of academic and clinical resources in relation to their potential contribution to teachers, teaching and learning. आपके अंदर अगर वो स्किल नहीं होगी, आपके अंदर वो कॉग्निजेंसी नहीं होगी, तो आप कैसे बच्चे को असेस करोगे कि आपको बच्चे को डिलीवर क्या करना है? तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ये बच्चा वीक है, जैसे हम आज बात करते हैं स्लो लर्नर, फास्ट लर्नर, मीडियोकर लर्नर, है ना, एवरेज लर्नर, ये सब बातें करते हैं। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। अब हम जब बिहेवियर स्किल ट्रेनिंग की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से ये भी एक कंपोनेंट टीचिंग का होना चाहिए, एविडेंस बेस्ड अप्रोच उसको होना चाहिए, और एम्प्लॉइज को ट्रेन करना चाहिए, टीम लीडर के बारे में, लीडरशिप के बारे में बताना चाहिए। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये सब चीजें आती हैं बिहेवियर स्किल ट्रेनिंग की। बिहेवियर स्किल्स क्या होता है? बेसिकली बिहेवियर स्किल्स आर पीपल स्किल विच इंक्लूड सोशल एंड इमोशनल स्किल्स। जो पूजा मैडम ने बहुत सारी चीजें टच की है ना, तो सारी चीजें इसी की ओर ले जाती हैं। आपका आप साइकोलॉजिकली यू शुड बी वेरी स्ट्रांग, देन यू कैन डिलीवर टू योर स्टूडेंट्स इन अ बेटर वे। सब्जेक्ट तो तब आएगा जब आप पहले आपकी पर्सनैलिटी में से वो तेज तो निकले जो स्टूडेंट तक पहुंच पाए, क्योंकि हम उस पर तो ध्यान ही नहीं दे रहे, है ना। तो दिस इज अ रियल चैलेंज, and behavior skill training involve a blend of skills needed in interpersonal relationship, productive emotions, effective communication and engaging attitudes. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये सब चीजें। बिहेवियर स्किल्स क्यों? हर लेवल पे बिहेवियर स्किल आता है, एम्प्लॉइज के लेवल पे भी, मैनेजर्स के लेवल पे भी, लीडर्स के लेवल पे भी, फैकल्टीज के लेवल पे भी, ये सारी चीजों पर वो आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ट्रेनिंग फोकस होना चाहिए बस। अगर आप लर्नर के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो ये टीचर आता है, लर्नर इज द फोकस ऑफ ऑल एजुकेशनल एक्टिविटी। ये पिक्चर आपको बहुत क्लियर बताती है। वो बच्चा अगर ग्रैस्प नहीं करेगा तो आपकी एजुकेशनल एक्टिविटी ही बेकार है। तो आपका जो फोकस है वो आपका लर्नर है, और जब तक आपका बिहेवियर उस प्रॉपर स्टेप तक नहीं जाएगा, योर ऑल एक्टिविटीज विल बी फ्यूटाइल। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन सी कॉमन बिहेवियर स्किल है जो आज के टाइम में 2021 के टाइम में जरूरी है इंटरपर्सनल स्किल्स के रूप में? टीम वर्क, गोल सेटिंग, इन्फ्लुएंशियल स्किल्स, मोटिवेशनल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेल्फ लीडरशिप, डेलीगेशन स्किल्स, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आजकल लोग इतना स्ट्रेस ले रहे हैं कि 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक से नहीं बच रहे हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट भी आना चाहिए जो आपकी बिहेवियर स्किल से डेवलप होगा। एजिलिटी, रिसिलेंस एंड रिस्क टेकिंग। मैं तो हमेशा एक ही चीज बोलूंगा, मेरी वाइफ से जब भी डिस्कशन होता है, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज आल्सो रिलेटेड विद दिस बिहेवियर स्किल्स। अगर टीचर के बिहेवियर स्किल को डिफाइन करें तो एक हेलन ओ शिया थे, उन्होंने दो तरीके से इसको डिफाइन किया। एक इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर के रूप में डिफाइन किया और एक इनइफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर के रूप में। तो दो तरीके से इसको डिफाइन किया उन्होंने टीचिंग के क्लासिफिकेशन ऑफ टीचर्स बिहेवियर को। इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर क्या होता है? इट मींस दोज एक्शंस और एक्टिविटी व्हिच फैसिलिटेट लर्निंग and pertaining to classroom. And ineffective teaching behavior is those actions, activity and verbalization. मैं इसको skip करूंगा इन सब चीजों को, और इसमें इंपॉर्टेंट चीजों पर जरूर फोकस करूंगा। अगेन, whatever you are trying to focus, it should be very focused. और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप बिहेवियर स्किल्स की बात करते हो तो आपको इंडिविजुअल भी फोकस स्टूडेंट्स पे करना चाहिए। नटशेल में यही सब चीजें बोली गई हैं। अगर प्रिंसिपल की बात करें तो क्लासरूम प्रिंसिपल होता है साइकोलॉजिकल सेफ एनवायरनमेंट दें उसको, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, अवॉइड गिविंग नेगेटिव रिमार्क्स, एक्सेप्टिंग आवर मिस्टेक्स आल्सो। एक क्लास में मेरे से किसी बच्चे ने पूछा था तो मैंने बोला था भाई
मैं बाद में पूछ के बताऊंगा बिकॉज आई डोंट नो द आंसर. So you should accept all these things. That comes in your behavior principle. चीजें वही हैं, उसको बात करने का तरीका अलग है, बट यू हैव टू एक्सेप्ट दैट. आपके अंदर मॉडेस्टी होनी चाहिए. कुछ प्रिंसिपल होते हैं, उस प्रिंसिपल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फीडबैक. फीडबैक नहीं लोगे तो कभी आप अपने अंदर सुधार नहीं कर सकते एज ए टीचर. बहुत सारे मेथड्स और डिवाइसेस आते हैं. कुछ मेथड्स हैं जैसे माइक्रो टीचिंग है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस हैं, इंटरेक्शन एनालिसिस है, क्रिएटिविटी है, रीएनफोर्समेंट है, टी ग्रुप ट्रेनिंग है, एंड साइमुलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, थ्रू विच you can analyze your behavior, you can introspect your interpersonal skills. So these are some of the important things which you really take care. And theory of teacher behavior में भी यही सब चीजें बोली गई हैं. Micro teaching is also very important, one of the most important development in the field of teaching practice. And micro teaching is an innovative technique of improving or bringing a change in educators behavior. तो माइक्रो टीचिंग केवल टीचिंग फोकस नहीं है, आपके बिहेवियरल चेंज में भी बहुत सारी चीजें करेगा. आप 5-10 मिनट के कंटेंट्स को शुरू कीजिए, ऑडियो विजुअल के थ्रू बोलिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें. प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए, आप इंटरैक्टिव एनालिसिस को आप फॉलो करिए, है ना. इंटरेक्शन आपका जितना अच्छा होगा स्टूडेंट के साथ, जितना आपका अच्छा आपका इंटरेक्शन के साथ आप जितनी सारी चीजों को यूज करके उसको कैची बना सकते हैं. क्रिएटिविटी इज आल्सो इम्पोर्टेंट. अब ये तो हो गई कि आपका बिहेवियर, उस बिहेवियर में आपको क्रिएटिविटी भी डालना पड़ेगा. योर प्लानिंग, योर टेस्टिंग, योर रिवाइजिंग, योर थिंकिंग, हाउ यू आर evaluating, these important components are there. Reinforcement is also, positive reinforcement is a stimulus which increases the likelihood that response will be made again. T group training, ये एक और important चीज है. T group training that provide the opportunity in situation to express their feeling regarding the training program. तो ये T group बहुत important है. अगर आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को भी फोकस करोगे ना, तो ये T ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आगे. आप उसको कभी पढ़िएगा, है ना. फीडबैक डिवाइस, साइमुलेटेड सोशल स्किल्स, तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैं इस चीज को कंक्लूड करूंगा. द एजुकेशनिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट हैव मेड एफर्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू टीचर एंड स्टूडेंट बिहेवियर. और शेयर करना चाहूंगा, ये सब तो थ्योरेटिकल था. अगर आपको एक टीचर अच्छा आना है और आपको अगर एक अच्छे लीडर के रूप में भी डेवलप होना है, तो आपको एक वर्ल्ड को फेस करना पड़ेगा जिसको कहते हैं वूका वर्ल्ड. वूका को डेफिनेशन में करता हूं. वी स्टैंड फॉर वॉलेटिलिटी, यू स्टैंड फॉर अनसर्टेनिटी, सी स्टैंड फॉर कॉम्प्लेक्सिटी एंड ए स्टैंड फॉर एम्बिग्यूटी. अगर आप मानो ना मानो, मैं तो इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं. इन चारों फैक्टर्स हैं, ये आज के टाइम में एग्जिस्ट कर रहे हैं. Whether you talk about volatility, whether you talk about uncertainty, whether you talk about complexity, whether you talk about ambiguity. और क्या क्वालिटी आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी इन चारों चीजों को, जो फैक्टर्स हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं. वॉलेटिलिटी को आप विजन से डेवलप ओवरकम कर सकते हो, अनसर्टेनिटी को अंडरस्टैंडिंग से, कॉम्प्लेक्सिटी को क्लैरिटी से, एंड एम्बिग्यूटी को एडेप्टेबिलिटी एंड एजिबिलिटी से. वूका को वूका से ही काट सकते हो, लोहे को लोहा काटता है. वूका था, उस वूका को आपने विजन, अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी एंड एडेप्टेबिलिटी एंड एजिबिलिटी से ही काटा है. बट यू हैव टू इनकलकेट, यू हैव टू अडॉप्ट दिस क्वालिटी. विजन स्टैंड फॉर फ्यूचर विजन स्केच एंड टाइमली ओरिएंटेशन. अंडरस्टैंडिंग स्टैंड्स फॉर ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्ट ऑन कॉन्टेक्स्ट, हार्मोनाइज स्किल्स. क्लैरिटी स्टैंड्स फॉर सिंप्लिसिटी, फोकस, trust and apply energy. And adaptability and agility stands for adopt, flexibility, consistent culture, facilitate innovation and build resilience, which is very important. You have to be more interactive, you have to be more participative, you have to be more engaging and you have to be more involved. आप कितना भी भागो, ये चारों पिलर के जो पार्ट हैं वो आपको टीचिंग में जब तक रहोगे तब तक तो ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे. ये सब चीजें आपको करनी पड़ेंगी. शॉर्ट, कॉट, टॉट और हार्ड फॉट, बड़ा अच्छा है. मुझे मिला था, ये ब्लर इसलिए आ रहा है कि मैंने कहीं से इसको खींचा है, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो आपसे शेयर करना चाहा मैंने. आपको शॉर्ट भी चाहिए, आपको कॉट भी चाहिए, आपको टॉट भी चाहिए और आपको हार्ड फॉट भी चाहिए. तो ये चार चीजें तो आपको करनी ही पड़ेंगी. वी आर व्हाट वी रिपीटेडली डू.
Therefore excellence is not an act but a habit. और जब आपने excellence को अपनी habit बना लिया ना, तो you know एक satisfaction भी आपका एक अलग लेवल का होगा और you will be the best. एक सिडने जे हैरिस थे, उन्होंने एक बड़ा अच्छा वो लगा था, तो इसलिए आप लोगों से शेयर किया था. द होल पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू टर्न मिरर इनटू विंडोज. गाड़ी के मिरर से आप देखते हो, लेकिन एजुकेशन उस मिरर को पूरे विंडो में कन्वर्ट करना चाहते हो, जिससे कि आप आगे का फ्यूचर बहुत क्लियरली देख सको. टीचर को समर्पित है लाइन, अन्नम दानम परम दानम विद्या दानम अता परम अन्येन छड़का तृप्ति यावज्यम विद्या. Poor providing food to poor and needy person is the best charitable deed, but making people learn by teaching them is the supreme form of charity. Food gives momentary satisfaction, but the knowledge will empower them to lead a satisfactory life. तो हम लोग बहुत लकी हैं कि इस प्रोफेशन में हैं. And if you want to change attitude, start with a change in behavior. Thank you so much again for providing me this opportunity. I know this is not an easy task to speak in front of you. और इस टाइप की बात करना, बिहेवियर स्किल, साइकोलॉजी, ये मेरे लिए तो मतलब एक परिकल्पना से परे की चीज है, मतलब जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता. सुरभि का धन्यवाद, प्रियंका मैडम का धन्यवाद कि 1 घंटा बोलने का मौका दिया. क्षमा कीजिएगा क्योंकि मुझे नहीं बोलना आता, बट कोशिश करने में मैं एक चीज पे बिलीव करता हूँ, यू ट्राई टू डू एक्सरसाइजेज, एक दिन तो सफल होगी. मैंने सुरभि मैडम को भी यही बोला, आज गलत बोलूंगा, गलत गंदा बोलूंगा, बोरिंग बोलूंगा, लेकिन कभी ना कभी तो अच्छा बोलने के लिए सफल होऊंगा. तो थैंक यू ऑल फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. थैंक यू सो मच. ओवर टू यू सुरभि मैम. इसमें प्रश्न होना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर कुछ इंटरेक्शन करना चाहें We तो are receiving I would be feedback grateful. in a chat box that very informative, very nice session. All the participants are